डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए एक जाल बिछाया और ज़ेलेंस्की उस जाल में ना सिर्फ फंस गया लेकिन वार करने की भी कोशिश की। लेट अली शो यू के इस खुसूसी एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज यकुम मार्च हो चुकी है लेकिन 28 फरवरी को एक ऐसा वाकया पेश आया अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के अंदर, जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन सदर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सब चीजें तय थी उस मुकाम उस वक्त तक कि एक मिनरल्स डील के ऊपर साइन होगा। इस चीज का पता नहीं था कि क्या यूक्रेन को उसके बदले में क्या मिलेगा। ये बात हो रही थी कि 500 अरब डॉलर की ये क्रिटिकल मिनरल्स डील है जो साइन होने जा रही है। और जब ज़ेलेंस्की वहां पे पहुंचे, एक प्लान ये था कि पहले ओवल ऑफिस के अंदर एक 10 मिनट की एक्सचेंज होगी, मीडिया होगा उधर मौजूद, और उसके बाद साइनिंग सेरेमनी होगी और एक फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जब सवालात लिए जाएंगे और बैक एंड फोर्थ होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्यों नहीं हुआ, पहले मुलाहिजा करें थोड़ा सा। ये लंबा चले, शायद मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट का आपको एक देता हूं। एक 50 मिनट की ओवल ऑफिस के अंदर एक्सचेंज हुई और वो एक तमाशा बन के रह गई, और उसके अंदर थ्रेटन भी हुए और धमकियां भी दी गई। एक मुख्तसर उसका एक हिस्सा है, बहुत 50 मिनट के अंदर वो दिखा रहा हूं मैं आपको कि क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैं आपको बताता हूं। You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will good. feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This a entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? Today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. तो ये था ज़ेलेंस्की, जो 3 साल हो गए एग्जैक्टली यूक्रेन रशिया जंग को, जब रशिया ने अटैक किया था, और ये पहुंचा हुआ है व्हाइट हाउस और ट्रंप बैठा हुआ है एक तरफ और जेडी वांस बैठा हुआ है, और इन दोनों का मुकाबला होता है, मुंहमारी होती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज़ेलेंस्की को बाहर फेंक दिया जाता है व्हाइट हाउस से, और जो मिनरल्स डील साइन होती है वो साइन नहीं होती। और फिर ट्रंप क्या ट्वीट करता है, ये देखें। ये ट्वीट करता है ट्रंप, हर कोई यानी चढ़ गया इसके ऊपर। और ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट की, उसने पोटस लिखा, ट्रंप का नाम नहीं लिया। ट्रंप ट्वीट करता है कि ये तैयार नहीं है अमन के लिए अमेरिका और रशिया के साथ। और फिर उसके बाद अब कनाडा भी ट्वीट करता है, ट्रूडो उसके साथ हिमायती में, टस्क जो है पोलैंड का वो भी करता है, यूरोपियन ममालिक जो हैं मैक्रोन भी करता है, हर कोई, यानी बहुत ही एक अजीब सा सिनारियो। और सब शुरू हुआ इस एक्सचेंज के साथ। ज़ेलेंस्की के कपड़ों के ऊपर भी बात हुई, सूट के ऊपर, वो भी सुने, उसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं। The highest level
in this country's office and you refuse to wear a suit, just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have dignity of this such- office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than yeah. तो ये पूछा गया कि ज़ेलेंस्की से कि भाई तुम अभी यहाँ पे आए हो तो अब तो जंग तो खत्म होने वाली है, सूट क्यों नहीं तुमने पहना हो? तो कहता है जब खत्म हो जाएगी तो मैं शायद तुमसे सस्ता वाला सूट कुछ ले लूं। वो भी कॉमेडियन तो है फिर एंड में ज़ेलेंस्की, आप जानते हैं कि कैसा कॉमेडियन है वो। एक बात वाज़ेह होके आ गई है यहाँ पे कि ज़ेलेंस्की के दिन गिने चुने हैं, और वो मैं क्यों कह रहा हूं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की के ऊपर अब सीधा निशाना है डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एटलीस्ट ऑन पेपर आदमी का, और दूसरी जानिब पुतिन और उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे अलेक्जेंडर दुगिन जिसकी बेटी को एक खुदकश हमले में, खुदकश नहीं एक कार बॉम्बिंग के अंदर मारा गया था जो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के ऊपर ब्लेम हुई थी। तो अब इसके ऊपर ज़ेलेंस्की के ऊपर एक एक्स मार्क लग गया है, पीछे पीछे मोहर एक तरीके से, कि ये अब टारगेट है बेसिकली। जो भी होगा दुनिया में, जैसे भी होगा, ज़ेलेंस्की टारगेट है। अब उसके लिए छुपने के लिए जगह खत्म हो गई हैं। कि डुगिन ने के भी अपनी बेटी के तो मरी क्योंकि वो टारगेट था, बेटी गाड़ी चला रही थी, वो किसी और गाड़ी में बैठ गया। अब डुगिन ने ट्वीट की, मैंने पहले भी जिक्र किया इसका, पोस्ट किया एक्स के ऊपर कि इसने अपनी इज्जत खोई, अपना मुल्क खोया और अब अपनी जान भी खोने को जा रहा है, उसने लिखा अलेक्जेंडर डुगिन ने। उसके साथ साथ अब ट्रम्प की ये ट्रूथ सोशल के ऊपर जो पोस्ट आ गई है, इसके अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची ना कि वो अपने, उसको भी अंदाजा था ज़ेलेंस्की को, यार यही मेरे पास एक मौका है मरने का, इसके ऊपर मैं आके मर रहा हूं। वो अगर चाहता वो खामोश रह सकता था, वो अपने आप को दबा सकता था उस मौके पर और पीछे जाके वो सब कुछ कह देता, मगर शायद ये ट्रैप उसके लिए बनाया गया था कि इसके अंदर वो आके गिरे, और वो बहुत बुरी तरीके से इस ट्रैप के अंदर फंस गया और गिर गया, और उसने जो भी बात थी यूक्रेन के ऊपर, उस गुस्से के अंदर, उस अटैक के अंदर, पर्सनल अटैक्स के अंदर, और उसने एक वक्त में तो ये भी कहा जेडी वांस से कि क्या तुम यूक्रेन आए हो, देखा है तुमने यूक्रेन? मेरा खदशा एक है, जब जंग शुरू हुई तो मैं एक जगह में था, ज़पोरिजिया के अंदर, और डिनिप्रो को कट करता है जो नहर गुजर रही है ज़पोरिजिया के अंदर, नॉर्थ और साउथ बैंक जो है उसको कट करता है। साउथ बैंक के अंदर यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर एनर्जी फैसिलिटी मौजूद है, ज़पोरिजिया एर्नेरेदोर एक करके जगह है, ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर आप जाके देखें ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को, तो ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर रशियन फोर्सेस का कब्जा है एनपीपी पे फरवरी मार्च 2022 से, और इसके ऊपर अटैक भी हुए हैं, शेलिंग भी हुई है यूक्रेनियन साइड से, और अलर्ट भी ऊपर गए हैं, मगर चीजें फिलहाल अंडर कंट्रोल हैं फिलहाल। लेकिन जो इसकी प्रोटेक्शन है और किस तरीके से इसको मुस्तहकम रखना है, वो बहुत बड़ा एक इशू है। और ऐसे मौकों के ऊपर जब ज़ेलेंस्की की इतनी बेइज्जती हो चुकी है, व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप ने कर दी है, और अब रशिया भी बड़ा खुश होगा, और ऐसे अनासर भी खुश होंगे अंदर यूक्रेन के अंदर जो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की को लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। तो ऐसे मौकों के ऊपर सैबोटाज की या एक ऐसा इंसिडेंट कोई क्रिएट करना जिसके अंदर इंसिडेंट्स बढ़ के आगे बढ़ जाएं, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे मौकों के। तो एक बहुत खतरनाक मौका है अभी दुनिया भर में, और हम नहीं चाहते कि चेर्नोबिल जो यूक्रेन के अंदर ही है, जो 1980s के अंदर वो हादसा हुआ था, वैसा कोई हादसा हो। वो तो खैर एक एक्सीडेंट था, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ये सब कुछ होना, ज़ेलेंस्की का इतना ब्रवाडो, अपना फॉल्स ब्रवाडो लोग कहेंगे दिखाना, अकड़ अपनी दिखाना, एक बहुत खतरनाक पहलू है मेरे ख्याल से। और मेरी दुआ होगी क्या ये ऐसी चीज ना हो। मैंने लास्ट रमजान भी 3 साल पहले भी जो रमजान हुआ था, मैंने इंटरेस्टिंगली
यूक्रेन में गुजारा था, कीव में। और मैं क्राइमियन तातर कम्युनिटी जो है वहाँ, मुसलमान जो है बेसिकली टर्किश, उनके साथ मैंने इफ्तार भी की थी, उनका पुलाव और सब चीजें मैंने खाई थी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो रिपोर्ट। रमजान शुरू हो गया है, रमजान मुबारक आप सबको। और जो हमारे भाई और बहन हैं कीव में, यूक्रेन में, उन सब के लिए बहुत दुआएं। क्राइमियन जो टाटर हैं उनके लिए बहुत दुआएं। पहले वो आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, क्राइमियन टाटर जो भाग रहे थे रशियन बर्बरियत से और फस्तायत से, उनके ऊपर। और फिर बताता हूं कि मेरा क्या ताल्लुक था और मैंने क्या गुजारा। जिस तरह ज़ेलेंस्की ने जेडी वान से पूछा क्या तुम यूक्रेन में टाइम गुजारा है, तो मैंने 2022 में जंग के शुरू होने के से पहले और बिल्कुल बाद तक उस साल 2022 के 85 दिन मैंने यूक्रेन में गुजारे। और फिर उसके बाद वो झलक आपको दिखाता हूँ और फिर बात अपने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar. The fast is broken with a call to prayer at the Crimean Tatar Islamic Center in Kiev. It opened a few years ago to cater to the growing number of Muslims in the city. But now, only a few thousand remain, and even less at the congregation. La ilaha illallah. Those left behind have time to reflect and to connect over some traditional Crimean food. Rice with sauteed carrots and a generous serving of halal meat and chickpeas. The first iftar here in Kiev is not a simple meal. It's a staple food for dinners, and on iftar, after Maghrib prayers, this is how they break their fast. At the table is Lenur Chavush, who helped start the mosque. He says the war deeply affected the Muslim community like all other Ukrainians. Of course, impacted because most of the families were must to leave the region and they go to the west to Lviv region. Some we left here to defend and to save this our property. Aider Rustamov is the prayer leader who escaped Crimea when the Russians annexed it in 2014. Russia oppresses Muslims and oppresses all around the world. This oppression, this tyranny, early or late, must end. As the Muslims of Kiev offer their final Isha prayers before they start fasting all over again, they say they stand strongly with their fellow Ukrainians to defend their country. I'm in this city. It's quite a big city, about 1 million people. We're getting reports that Russian forces have landed in Mariupol. Normal 7 a.m. in Zaporozhye. Will it stay normal? तो पहले आपने देखी है रमजान की रिपोर्ट के रमजान इन कीव विद क्राइमियन टाटर्स, और वहां पे इफ्तार भी हुई, नमाज भी पढ़ी, और जंग के दौरान तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक माहौल था, बहुत ही अजीब सा माहौल था एक। मगर बड़ी उम्मीद थी क्योंकि एक कम्युनिटी थी, सब मुसलमान एक साथ जमा हुए थे और रमजान एटलीस्ट साथ मना रहे थे जंग के दौरान। और दूसरी जानिब जब जंग शुरू हुई और किस तरीके से वो आगे बढ़ी, 24 फरवरी से एक दिन कबल जब मैं वहां पहुंचा तो वो आपने देखा। मगर अब यकीन नहीं आता इतने साल गुजर जाने के बाद, 3 साल गुजर जाने के बाद, ज़ेलेंस्की की क्या किस्मत है। और वो भी ये दिन याद है कि जब ज़ेलेंस्की जो आपने एंड में देखा कि आके बैठा और मैं दो सवाल ही मैंने पूछे, मगर प्लान था एक इंटरव्यू का ज़ेलेंस्की से उस वक्त, और वो उसकी टीम ने अग्री करके वो मुकर गए। टिमोथी निफिरमोव या ऐसे कुछ करके उस बंदे का नाम था, और उसकी वजह ज्यादातर ये थी कि टीआरटी के अंदर एक खाना जंगी चली हुई थी उस वक्त, टीआरटी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंसी ने टेक ओवर किया था और अपने बंदे पहुंचाए थे, जिसमें से बोरा बायरक्तार मौजूद था, फारतिन आल्तुन मौजूद थे। खैर कहानी कहीं और चली जाएगी, मगर उसका टेक ओवर हुआ टीआरटी वर्ल्ड का डायरेक्ट जो
एरमान युक्सेल को हटा दिया गया और इन लोगों ने आके टेक ओवर किया। मगर जो एरमान युक्सेल ने जाते जाते जो फातेह एर और इब्राहिम एरन की टीम थी उनके लिए एक इंटरव्यू सेट कर दिया ज़ेलेंस्की के साथ और वो पहुंच गए कीव। यहां से मैं विनित्सा में था और मुझे मूव किया गया कीव की तरफ, कोई प्लानिंग किसी भी और चीज के बगैर, और हम कोई 14-15 घंटे की जर्नी करके, जो एक 3-3.5 घंटे की जर्नी है क्योंकि रोड ब्लॉक्स सब चीजें लग चुकी थी, बंदूकें निकल चुकी थी, हम पहुंचे तो एक खाना जंगी कई लेवल्स के ऊपर हो रही थी। और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने हमारे सामने बैठा, बड़ा मजाक भी किया, टिमोथी भी सामने खड़ा हुआ था जो प्रेस का बंदा था इसका, और ये बड़ा एक तरीके से वो हुए थे क्योंकि सर्वाइव किया था इसने। कोई 3 अटैक अटेम्प्ट्स इसके ऊपर हुए थे चेचन रेबल्स के एलिजिडली, और पूरा एक लॉकडाउन में था कीव। किस तरीके से वो इंटरव्यू हुआ, हम कैसे पहुंचे उधर, क्या क्या हमें, इट वाज अनबिलीवेबल। या मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे लफ्जों में कि क्या हुआ। उसकी झलकें आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के अंदर और जो आपने देखी। मगर अब ज़ेलेंस्की का हाल देख के वो इतना तकब्बुर, और एक तकब्बुर का एक इंस्टेंस ये भी था कि जब शॉन पेन पहुंचा उधर और उसने अपना ऑस्कर उसको देने का किया। आप देखें उसे, उसके बाद बात खत्म करते हैं। For you. Oh, Sean. Yes. No. Please. That is yours. No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing. Yes, but if I know this is here. तो ये था शॉन पेन, और ये कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऑस्कर अपना अवार्ड लेके आया हूं तुम्हारे पास, इसको रखो, एक ऐसा गिरवी रखो अपने पास। तो क्या एक्टिंग हुई, क्या एक्टिंग से रियलिटी में किधर से बात किधर निकली, किसको पता। मगर ज़ेलेंस्की के ऊपर अब एक टारगेट लग गया है, और अगर अमेरिका ने अपना हाथ हटा लिया, यूरोप, कनाडा, वैनडा, ये जो तो खड़े हुए थे इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ एनिवर्सरी डे के ऊपर कुछ दिन पहले, इनका क्या हाल होगा। आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक, अल्लाह हाफिज।